أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ بخیر خوب ہوں گے. تو چلیے آج کا سیشن شروع کرتے ہیں. آج ہم ایک اور نیگیٹو ٹریٹ آف ہیومن پرسنالٹی دیٹ از اینگر we will discuss in this session. اینگر، جس کو عربی میں غائز بھی کہتے ہیں، اردو میں جس کو ہم غصے سے تعبیر کرتے ہیں، یہ ایک نیگیٹو ٹریٹ ہے، ایک بیسک ہیومن ایموشن، بٹ اٹ از اے نیگیٹو کوالٹی آف ہیومن پرسنالٹی اینڈ از ریلیٹڈ ٹو فائٹ فلائٹ freeze response of sympathetic nervous system, and with the result it prepares human to fight. تو اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا تو اس میں ایموشنز بھی رکھیں، ڈیزائرز بھی رکھیں، جن کو ہم جبلتیں کہتے ہیں یا ہیومن انسٹنکٹس کہتے ہیں. اس میں کچھ پازیٹیو مثبت پہلو بھی ہیں، اس میں کچھ نیگیٹو منفی پہلو بھی ہیں. جیسے ہم نے مثبت پہلوؤں پر کچھ بات کی، جیسے عدل ہے، جس کو ہم انصاف بھی کہتے ہیں، ٹروتھ فلنس ہے، آنیسٹی ہے، باقی جو چیزیں ہیں جو انسانی زندگی یا انسانی پرسنالٹی کی پازیٹیو کوالٹیز ہیں، پازیٹیو سائڈز ہیں. اسی طرح اللہ نے انسان کے اندر کچھ ایسی جبلتیں رکھی ہیں، ایسی کوالٹیز رکھی ہیں، انسٹنکٹس رکھی ہیں، مثلاً نفرت، ایروگنس ہے، پرائڈ ہے، اسی طرح اینگر ہے. یہ نیگیٹو کوالٹیز ہیں. دیز آر دا نیگیٹو کوالٹیز آف ہیومن پرسنالٹی. تو اس میں اینگر بھی ہے، غصہ بھی ہے، عربی میں جس کو غیظ کہتے ہیں. یہ ایسی نیگیٹو کوالٹی ہے if it is not controlled or if it is not managed properly, it can be detrimental for oneself. Not only for oneself but for the whole society. یہ انسانی سماج کے لیے ایک نقصان دہ عمل ہو سکتا ہے اگر غصے پر کنٹرول نہ کیا جائے، غصے کو قابو میں نہ کیا جائے. تو انسان کے اندر یہ جو چیز ہے، مثلا جو کہ ہم نیگیٹو کوالٹیز کہتے ہیں، جیسے ہم اینگر یہاں پڑھ رہے ہیں، اس کو ہم سپریس کر سکتے ہیں، دبا سکتے ہیں، لیکن پورے طور پر اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس نظام، انسانی جو جسم کا ایک ایسا نظام بنایا ہے جو پراپرلی بیلنسڈ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک توازن رکھا ہے. اور یہ توازن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ہے انسانی جسم، اس کی ایموشن، اس کی حرکات و سکنات ایک اعتدال کے دائرے میں رہیں. وہ اعتدال سے باہر جو ہے وہ اعتدال کے حدود نہ پھلانگے، وہ اعتدال میں رہے. تو انسانی زندگی ایک صحیح راستے پر چلے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں توازن رکھا، ایک بیلنس رکھا، ایک آرڈر رکھا. جو اس آرڈر اور اس بیلنس اور اس توازن کے نتیجے میں ایک مثبت جو ہے سوچ پیدا ہوتی ہے، مثبت پہلوؤں کی طرف زیادہ توجہ ہوتی ہے. اگر اس میں منفی جبلتیں ہیں، منفی انسٹنکٹس ہیں یا نیگیٹو کوالٹیز ہیں، وہ ان کو سپریس کرتا ہے، یا جہاں جس وقت موقع اور مناسبت کے لحاظ سے ان کو استعمال میں لاتا ہے. اس کو آگے ہم بات کریں گے. تو یہ جو اینگر جو ہے یہ ایک نیگیٹو کوالٹی ہے، لیکن اس کو ہمیں کنٹرول کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ جب انسان اینگر میں ہوتا ہے، غصے میں ہوتا ہے، تو پہلے جو ہے اس کے الفاظ سے جو ہے ظاہر ہوتا ہے، پھر اس کے وجود سے ظاہر ہوتا ہے، اس کی سانس پھولنے لگتی ہے، اس کی گردن کی رگیں پھڑکنے لگتی ہیں، اور وہ پھر گالم گلوچ پر آتا ہے. اس کے بعد جو ہے اس کے ہاتھ اٹھتے ہیں، پاؤں چلتے ہیں، اور وہ جو ہے
बदला लेने पर जो है अट जाता है और अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकता है, समाज को भी नुकसान पहुंचा सकता है अगर इस गुस्से को बर वक्त कंट्रोल न किया जाए। तो ह्यूमन रिलेशन में दरार पैदा हो सकती है और ये एक ऐसा लावा उसके अंदर जो पक रहा है वो फट सकता है कि समाज के जो है का जो ऑर्डर जो है, समाज का जो तवाज़ुन है वो बिगड़ सकता है और बहुत सारे ऐसे असरात सामने आ सकते हैं जो समाज के लिए, जो उस आदमी के लिए या जो उस घर के लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। तो एंगर, इसको कंट्रोल करने के बिना हम कैसे इस एंगर को कंट्रोल करें, क्या मैनेजमेंट क्या है, उस पर हम अभी बात करेंगे। पहले देखते हैं कि कुरान क्या कहता है एंगर के बारे में, गुस्से के बारे में। अल्लाह कहता है, कुरान जो है एक क्वालिटी बताता है उन लोगों की जो गुस्से को पी जाते हैं, जो गुस्से को कंट्रोल करते हैं। तो गुस्से को कंट्रोल करना एक अच्छी आदत है। जैसे कुरान कहता है वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफीन अनिन नास, दोज हु स्पेंड इन गॉड्स कॉज इन security and in adversity, who repress anger and who pardon the people, verily God loves the good doers। तो कुरान करीम इसको डिफाइन करता है कि एक मुत्तकी, एक पाकबाज और एक अच्छा इंसान, उसकी क्वालिटी क्या है। बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं और यहाँ हम एंगर की बात कर रहे हैं। तो वो क्या होता है कि वो काज़िमीनल गैज़, वो गुस्से को पी जाता है, गुस्से पर कंट्रोल करता है। जब उसे गुस्सा आता है उसको अनकंट्रोल्ड कंडीशन में नहीं ले जाता है, बल्कि वो अपने आप पर काबू पा लेता है, वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है, ताकि ये गुस्सा जो है समाज के लिए और उसकी अपनी ज़ात के लिए नुकसानदेह साबित न हो, उसकी रिलेशन के लिए नुकसानदेह साबित न हो। इसलिए वो गुस्से को पी जाते हैं, फ़ौरन गुस्से पर कंट्रोल करते हैं। और इसी तरह एक और आयत में है वज़न्नून इज़ ज़हब मुग़ज़िबन फ़ज़न्न अन लन नक़दिर अलैहि फ़नादा फ़ी ज़ुलुमाति अन ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, and mentioned the man of the fish when he went off in anger and thought that we would not decree anything upon him, and he called out within the darkness, there is no deity except you, exalted are you indeed, I have been of the wrongdoers। यहाँ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र है कि अल्लाह ताला ने उनको एक कौम की तरफ भेजा, वो वहाँ तबलीग करते थे, उनको अल्लाह ताला का कलाम सुनाते थे, उनको अल्लाह ताला का रास्ता दिखाते थे, लेकिन कौम जो है कौम ने नहीं माना, कौम जो है इनकार पर अड़े रही। तो यूनुस अलैहिस्सलाम बगैर हुक्म खुदाबंदी के उस बस्ती से गुस्से की हालत में निकल पड़े। लेकिन ये बात अल्लाह ताला को पसंद नहीं आई कि मेरे हुक्म के बगैर गुस्से की हालत में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम इस बस्ती से चले जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने यूनुस अलैहिस्सलाम को एक बड़े इम्तिहान में डाला और वो जो है मछली के पेट में जो है वो चले गए। बहरहाल वो यहाँ हमें वो किस्सा बयान करना मकसूद नहीं है। बहरहाल तो एक क्वालिटी को बयान किया गया है जो अल्लाह ताला ने इसको नापसंदीदगी के नज़र से देखा और यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में पहुंचा दिया। समंदर की तन्हाई या मछली के पेट की तन्हाइयों पे तन्हाई में पहुंचा दिया यूनुस अलैहिस्सलाम को। उसके बाद अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामिला से यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से बाहर निकाला। बहरहाल एक अलग बहस है। तो यहाँ गुस्से को जो है एक नेगेटिव क्वालिटी, नेगेटिव ट्रेट के तौर पर बयान किया गया है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आता है। Once a man came to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and said, Messenger of God, teach me some words which can I live by. Do not make them too much for me in case I forget. He said, do not be angry. Further to that, in the traditions of the Prophet, we are able to find many instances of how to behave when anger threatens to engulf us or burst out. He said,
If one of you becomes angry while standing, he should sit down. If the anger leaves him, well and good, otherwise he should lie down. In another hadith, Prophet ﷺ said, anger comes from Satan. Satan was created from fire, and fire is extinguished only with water. So when any of you is angry, he should perform ablution. तो यहाँ एंगर मैनेजमेंट की बात कही गई है कि मसलन यहाँ एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आता है और अर्ज़ करते हैं कि ए अल्लाह के नबी, मुझे कुछ नसीहत कीजिए, और नसीहत ऐसी हो कि मैं उसको भूल न जाऊँ, मैं उसको याद रखूँ. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कहा कि गुस्सा मत करना, गुस्सा मत करना. इसी तरह जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि हदीस में आया है कि ये गुस्सा जो है ये शैतान की तरफ से है, और शैतान आग से पैदा किया गया है, और इस आग को बुझाती है, इस बुझाने वाली चीज़ जो है वो पानी है. इसीलिए जब आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो तो वज़ू करके बैठ जाओ. हम आगे इस पर बात करेंगे. तो नेगेटिव क्वालिटी, जो एंगर, जो नेगेटिव क्वालिटी जिसको बयान किया गया है यहाँ, ये इंसानी ज़िंदगी के लिए मुज़िर है अगर इसको कंट्रोल न किया जाए. और किसी ने कहा है कि इंसान के अंदर एक ऐसी आग लग जाती है, एक ऐसी आग जो फिर ज़ाहिर होती है उसके मुंह से, उसकी आँखों से, उसकी ज़ुबान से, उसके अल्फाज से, और ये रिश्तों में दरार जो है पहुंचा देती है. और बाद अवकात इस गुस्से के नतीजे में तलाक की नौबत आती है. दो जो है मियाँ बीवी के दरमियान तलाक की नौबत आती है जब गुस्से को अनकंट्रोल्ड जो है मैनर में रहने दिया जाए, इस पर काबू न किया जाए, तो रिश्ते जो है ख़त्म हो जाते हैं, समाज में बदमज़गी पैदा हो जाती है. और ये जो गुस्से वाला आदमी जो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं करता है, ये ऐसी बातें कहता है जो नाकाबिल बयान हैं और जो सुनने वाले के लिए अज़ियत और तकलीफ़ का बाइस बनते हैं. और जो है वो बाज़ अवकात ऐसी हरकतें करता है जिससे अपने आप को भी तकलीफ़ पहुंचाता है, और लड़ाई झगड़ने पर जो है वो पहुंच जाता है, वो किसी को जिस्मानी तकलीफ़ भी देता है. गुस्से की हालत जब उसकी जो अनकंट्रोल्ड कनेक्शन पैदा हो जाती है तो उसको रोकना फिर मुश्किल हो जाता है, और वो मध्य मुकाबल को तकलीफ़ पहुंचाता है, उसको जो है वो जिस्मानी तकलीफ़ उसे पहुंचाता है, या गालम गलोच के ज़रिए से जो है उसको ज़हनी तकलीफ़ पहुंचाता है अगर वो अपने गुस्से पर कंट्रोल न करे. तो गुस्सा जो है इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है. हर जगह जिस वक्त जो है इंसान के अंदर ये जज्बात पैदा हो जाए तो वो उनके नताइज पर गौर करे कि मैं अगर अनकंट्रोल्ड मैनर में जाऊं तो इसके नताइज क्या होते हैं, क्या हो सकते हैं, इसका जो नतीजा क्या मिलेगा, क्या ये फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है. ये पहले इस पर गौर करना चाहिए कि मैं अगर गुस्सा अनकंट्रोल्ड मैनर में जो है वो हो जाता है तो इसके नताइज क्या है, क्या मुझे भुगतना पड़ेगा. हो सकता है इसके नताइज भयानक भी हो सकते हैं, उसको जेल भी जो है वो जेल में भी पहुंच सकता है अगर इस गुस्से की हालत में इसने किसी को तकलीफ़ पहुंचाई, किसी को ज़ख्मी किया, या ऐसी नौबत पहुंची कि वो जो है हालात ख़राब हो गए, तो वो जो है उसको बहुत ही ख़तरनाक किस्म की जो है वो ट्रबल में आ सकता है, तकलीफ़ में आ सकता है. तो ये जो एंगर मैनेजमेंट जो है इसको बयान किया गया है कि जब आप गुस्से में हो, एक ऐसी हालत होती है जब आप खड़े हों गुस्से की हालत में हूँ तो आप कुछ कर गुजरने पर तुले होते हैं, बदला लेने पर तुले हुए होते हैं. तो कहा गया है एंगर मैनेजमेंट में कि आप बैठ जाओ, गुस्सा सरद होगा. तो बैठ जाने से भी अगर जो है आप गुस्सा फरो नहीं होता है, कम नहीं होता है, तो लेट जाने को कहा गया है कि आप लेट जाओ. आप गुस्से की हालत में हैं, खड़े हैं तो बैठ जाओ. गुस्सा जो है वो नहीं जाता है बैठने की हालत में भी तो लेट जाओ, क्योंकि ये जो फिज़िकल एक्टिविटी इसके ज़रिए से कम होती है, जो इंटेंसिटी फिज़िकल एक्टिविटी की है वो कम हो जाती है. मसलन अगर इंसान खड़ा है, वो खड़े होने की हालत में वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन बैठने की हालत में ये ताकत कम हो जाती है. फिर लेटने की हालत में इस पर मज़ीद कमी आ जाती है कि लेटने की हालत में वो जो है ऐसा कुछ नहीं कर सकता है जो खड़े होने की हालत में वो कर सकता है. फिर भी अगर गुस्सा जो है वो
कम नहीं होता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात के मुताबिक उसको वज़ू करना चाहिए। और ये जो वज़ू जो है पानी से उसके बदन पर ठंडक पहुँचेगी, ये आग जो है ये सर्द हो जाएगी और इसका गुस्सा कम हो जाएगा और ये वो हरकत करने से बाज रहेगा, बदला लेने से बाज रहेगा और जो है इसका गुस्सा कम होगा अगर ये वज़ू करे। इससे भी नहीं होता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक वो जो है अल्लाह की बारगाह में 2 रकत नमाज अदा कर सकता है और ये गुस्सा इससे कम हो जाएगा। इसी तरह हदीस में आया है कि जब आप में ये क्वालिटी जो है ये पैदा हो जाए, गुस्सा पैदा हो जाए, तो खामोश रहो, क्योंकि जब आप खामोश रहेंगे तो नतीजे के तौर पर अंदर जो जज्बात हैं वो जो है अंदर ही अंदर रहेंगे, उनको बाहर निकलने का मौका नहीं मिलेगा। और जो बाहर जब निकलते हैं तो वो हार्श वर्ड की सूरत में निकलते हैं, ख़तरनाक अल्फाज की सूरत में निकलते हैं। तो इंसान जब जो है खामोशी इख्तियार करता है तो ये अल्फाज दबे रहते हैं और इन अल्फाज को जब ज़ुबान से अदा किया जाता है तो इनका एक ज़ाहिरी असर होता है। उस ज़ाहिरी असर उसको बंद करने के लिए, उसको रोकने के लिए जो है खामोशी इख्तियार करने को कहा गया है अगर आप गुस्से में हैं। इसी तरह अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, A man reported, I thought about the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, and I realized that anger combines all kinds of evils. आखिरी हदीस का हमने टुकड़ा पढ़ा कि जो है कि ये जो एंगर जो है इसमें शैतान उसके ऊपर सवार हो जाता है और इस शैतान को भगाने के लिए जो है अल्लाह ताला का ज़िक्र उसको भगाता है। वज़ू करने के ज़रिए से वो जो है इस जो गुस्सा जो है वो कम हो जाएगा। इस तरह एक हदीस में आया है, द स्ट्रॉन्ग मैन इज़ नॉट द गुड रेसलर, द स्ट्रॉन्ग मैन इज़ ओनली द वन हु कंट्रोल्स हिमसेल्फ व्हेन ही इज़ एंग्री। यानी बहादुर आदमी वो है जो गुस्से के वक़्त अपने आप को कंट्रोल करे। तो ये जो एंगर मैनेजमेंट के सिलसिले में हमने जो बातें की उनको हम यहाँ सम अप कर सकते हैं कि अल्लाह ताला की पनाह मांगना शैतान से, क्योंकि शैतान ही जो है जो इसको इस काम पर उभारता है। तो शैतान से पनाह मांगने की जो है हुक्म दिया गया है, आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जो है अगर हम खड़े हैं तो बैठ सकते हैं, बैठे हैं तो लेट सकते हैं या वज़ू कर सकते हैं। इसी तरह हम अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं जैसे हमने कहा इससे पहले, और जिस सिचुएशन में है वहाँ से भागना, वहाँ से दूर चले जाना, ये भी गुस्से को कम कर देगा। इसी तरह जो है खामोश रहना ये भी गुस्से को कम कर देगा और इसके इफ़ेक्ट जो हैं वो कम होंगे और जो मध्य मुकाबिल है या जिस पर गुस्सा किया जा रहा है वो भी बच सकता है और जो गुस्से करने वाला है वो भी बच सकता है। लेकिन यहाँ एक और बात हमें जहन में रखनी चाहिए, ये जो एंगर जो है ये 2 किस्म का होता है, एक है नेचुरल एंगर, दूसरा है पर्सनल एंगर। नेचुरल एंगर का मतलब है कि जब अल्लाह ताला के हुदूद को कोई पामाल होते हुए देखता है तो उस वक़्त गुस्सा आना लाजमी नतीजा है, बल्कि ईमान का एक हिस्सा है कि जब अल्लाह ताला के अहकाम तोड़े जाते हों, अल्लाह ताला की हुदूद को पामाल किया जाता हो, उस वक़्त इंसान के अंदर ये आना चाहिए, एक जज्बा आना चाहिए कि वो इन जो कमांडमेंट जो है जो तोड़े जा रहे हैं, जो अहकाम तोड़े जा रहे हैं, उनके खिलाफ जो है वो कदम उठाए कि ये जो अल्लाह ताला की नाफरमानी की जा रही है तो उसके अंदर गुस्सा आना एक फितरी बात है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक मशहूर एग्ज़ाम्पल है, जब वो एक जंग में उन्होंने एक आदमी को जो है उस पर चढ़ दौड़े और उसको कत्ल करना चाहा तो उस आदमी ने जो है हज़रत अली के चेहरे मुबारक पर थूका तो हज़रत अली ने उसको फ़ौरन छोड़ दिया। तो वो हैरान हो गया, तो उसने पूछा कि आपको एक चांस बनता था मुझे कत्ल करने का, आपने मुझे पकड़ा तो आप अपनी तलवार से मुझे कत्ल करना चाहते थे, आप जो है मुझ पर काबू पा चुके थे, तो फिर आपने ऐसा क्यों नहीं किया? कहा कि मैं सिर्फ अल्लाह की खातिर तुझसे लड़ रहा था,
میں یہ کام صرف اللہ کی خاطر کر رہا تھا. جب آپ نے مجھ پر تھوکا تو یہ ایک پرسنل معاملہ بن گیا کہ آپ نے مجھ پر تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا. اگر میں اس حالت میں آپ کو قتل کرتا تو یہ اللہ کے لیے نہ تھا, یہ میری پرسنل ذات کے لیے تھا. تو ایک ایگزامپل ہے جہاں ہم نیچرل اینگر اور پرسنل اینگر کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. پرسنل اینگر کیا ہے کہ جو ہم نے بیان کیا, یہ پرسنل اینگر میں آتا ہے جو شیطان اس پر سوار ہوتا ہے اور اس کو بدلہ لینے پر ابھارتا ہے. تو بہرحال یہ ایک نیگیٹو کوالٹی ہے, اس پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. جس حالت میں ہوں, جہاں بھی ہوں, چاہے ہم استاد جو ہے وہ کلاس میں پڑھا رہا ہو, اس کو بھی جو ہے ایسا اینگر, ایسا غصہ نہیں کرنا چاہیے جس سے بچوں پر الٹا اثر پڑے. یا جس حیثیت میں ہم ہوں اس حیثیت میں ہم اپنے آپ کو ایک بیلنسڈ انداز میں پیش کریں اور ایک ایسے انداز میں پیش کریں جو سماج کے لیے یا اپنے ماتحتوں کے لیے فائدہ مند ہو. تو اس کے ساتھ ہم یہاں جو ہے ہم اس سیشن کو ختم کر دیتے ہیں. امید ہے کہ آپ جو ہے یہ جو لیکچر جو ہے سیشن جو ہے ان کو جو ہے دیکھتے ہوں گے. یہ ہم نے جو لنکس ہم پرووائڈ کرتے ہیں, تو اگر آپ کو اس کے مزید کوئی ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں پوچھ سکتے ہیں, آپ کمنٹ کر سکتے ہیں. تو نیکسٹ سیشن تک خدا حافظ. آپ اللہ کی امان میں رہو. فی امان اللہ, الی اللقاء.